سارے مخارج کو دیکھ لیا. ہم نے حروف حلقی کو دیکھا کس طریقے سے تمام حروف حلقی ادا کیے جاتے ہیں. ہم نے حروف حلقی کے مخارج کو پڑھا بھی، اور حروف حلقی گلے سے ادا ہونے والے حروف ہیں. اس کے بعد ہم نے حروف لسانیہ شروع کیے، یعنی زبان سے ادا ہونے والے حرف. ان میں ہم قاف یعنی موٹا والا کاف اور قاف دونوں کا مخرج، موٹا قاف اور کاف، باریک اور موٹا کاف، ان دونوں کے مخرج کو ہم دیکھ چکے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا نام حروف لہاتیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دیکھ لیا تھا الحمدللہ. آج ہم دیکھیں گے کہ زبان کے درمیان میں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم نے اپنے مخرج فم کو، بڑا مخرج ہمارا کیا تھا؟ الفم، ہمارا منہ. اور منہ کے اندر ہماری کتنے پارٹ ہیں؟ لسان ہے ہماری زبان، اسنان ہیں ہمارے دانت، شفتان ہیں جس کے 4 حروف ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، یعنی ہمارے ہونٹ. اور حنک، تالو، تالو سے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کاف اور قاف ادا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی حروف ادا ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس میپ کو اچھی طرح دیکھیں گے نا، تو شفتان یہ ہمارے 2 ہونٹ دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور دو ہونٹوں کے اندر دانت ہیں جن کا نام ہے اسنان. ہمارے دانت یعنی 32 دانتوں کا یہ جو ہمارے پورا ایک پینل ہے، اس کا نام اسنان ہے. ہمارے ہر دانت کا نام الگ ہے جو الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تالو اوپر کا، یعنی اوپر کے تالو کو بھی اگر ہم دیکھیں نا، تو ایک تو دانتوں کے بالکل قریب تالو کا حصہ بنتا ہے، پھر درمیان میں آ جاتا ہے جو سخت تالو ہوتا ہے، اور پھر اینڈ پہ آتا ہے جو بہت نرم تالو ہوتا ہے. اسی طریقے سے لسان جو ہے وہ بھی ہماری زبان مختلف حصوں میں ہے. زبان کی نوک ہے، زبان کا درمیان والا حصہ ہے، اور زبان کا پیچھے والا حصہ ہے. اس کے علاوہ مخارج میں ایک چیز اور استعمال ہوتی ہے ہماری زبان کی، اور وہ ہے ہماری زبان کی کنارے یا کروٹیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا الحلق. یہ مخرج جو ہے یہ بالکل اینڈ پہ ہے، اور یہ بھی 3 حصوں کے اوپر مشتمل ہے. ادن الحلق بھی ہے، اقصی الحلق بھی ہے، اور وسط الحلق بھی ہے. یہاں کے مخارج بھی الحمدللہ ہم نے دیکھ لیے. تو آج جو ہم چیز دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سخت تالو کیا ہوتا ہے. سخت تالو ہم نے کاف کے مخرج میں بھی دیکھا تھا، یعنی جہاں پہ ہمارا نرم تالو ہے نا، یہ جو ہمارا تالو جس کو ہم کوا کہتے ہیں، یہ ہے ہمارا نرم تالو. اور اس سے آگے کا جتنا بھی حصہ ہے وہ ہمارا سخت تالو ہے، اور اس سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں. آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے زبان، ہماری زبان کا حصہ. آپ دیکھیے کہ زبان کو ہم 3 حصوں میں کیسے تقسیم کرتے ہیں. جب ہم مخارج میں استعمال کرتے ہیں اقص اللسان، تو ہماری زبان کا یہ حصہ جو ہے یہ ہمارے حلق کے قریب والا حصہ ہے. ٹھیک ہے، حلق کے اندر، یعنی کہ ہماری زبان کا وہ موٹا حصہ جو جڑ کے ساتھ پیچھے جڑا ہوا ہے، وہ ہے ہماری اقص اللسان. اسی طرح جو درمیان والا حصہ ہے وہ ہمارا وسط اللسان ہے، یعنی وسط سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری زبان کا درمیان والا حصہ. اور پھر اس کے بعد طرف اللسان. اس طرف اللسان کو کہیں کہیں آپ راست اللسان بھی لکھا ہوا دیکھیں گے. تو طرف اللسان کا مطلب ہے ہماری زبان کی نوک، بالکل ہماری زبان کی نوک کی. تو آگے زبان کے پراپر 3 پارٹس. اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں نا، یہاں پہ آپ کو حافت اللسان لکھا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زبان کا کنارہ ہے نا، یہ والا پورا موٹا کنارہ زبان کی دونوں طرف موجود ہوتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ ہماری حافت اللسان ہے، یعنی ہماری زبان کا موٹا والا حصہ. چونکہ یہ مخرج کا حصہ ہے، مخرج میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو پراپر دکھایا جا رہا ہے کہ زبان کا یہ کنارہ یہاں سے، یہ جو کروٹ ہوتی ہے نا زبان کی، اس کو ہم حافت اللسان کہتے ہیں. تو بیسک پراپر طور پہ زبان کے کتنے حصے ہو گئے؟ 4 حصے ہو گئے: اقص اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، اور حافت اللسان. یہ چونکہ نام تمام پراپر آپ کے مخارج میں یوز ہوں گے، لہٰذا اس نقشے کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، اچھی طرح دیکھنا ضروری ہے. طرف اللسان حلق کی طرف،
मोटी जो जुबान जड़ से जहां पे जुड़ी हुई है, वसत लिसान दरमियान का हिस्सा, और तरफ लिसान जुबान का किनारा, और हाफत लिसान जुबान की करवट है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जुबान जो कि आज हमारे मखरिज में इस्तेमाल भी होगी। इसके बाद शफ्तान दिखाए गए हैं जो कि हम देख चुके हैं, शफ्तान और शफ्तान के निकलने वाले हरूफ भी। अब हम आते हैं मुंह के अंदर एक और चीज जो है अल असनान, यानी हमारे 32 दांत। अगर हम देखें टोटल तो क्या हमारे दांत 32 हैं पूरे? हमारे दांत पूरे प्रॉपर 32 नहीं हैं। हमारे 10 दांत हैं और 12 हमारी दाढ़ें हैं। और ये किस तरीके से डिवाइड होती हैं हम इनको देखते हैं आज, कि दांत हमारे टोटल कैसे इस्तेमाल होंगे, इनके नाम क्या हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो दिखाया जा रहा है वो है असनाया। ग्रीन कलर के हिस्से आप देखिए, दो ऊपर के फ्रंट टीथ जो के सामने हैं। आंसर अगर आप हैं तो इसको पॉइंट कर सकती हैं। दो ऊपर के दांत फ्रंट टीथ, रैबिट टीथ भी जिनको कहते हैं, सामने हमारे दो बड़े दांत, और उसके बिल मुकाबिल नीचे के दो दांत सनाया सुफला कहलाते हैं। देखिए, जो दो ग्रीन दांत हमारे फ्रंट के ऊपर है ना, उनका नाम है सनाया उलिया, यानी ऊपर वाले दो सनाया या सामने वाले दो दांत, फ्रंट के दांत। इसी तरह उसके मुकाबिल नीचे के जो दांत आएंगे ना, ग्रीन कलर में आ रहे हैं, वो हैं सनाया सुफला, यानी नीचे के दो दांत। ये जोड़ा है, 4 दांत हैं, दो ऊपर के और दो उसके मुकाबले में नीचे के। इनका नाम है सनाया उलिया, ऊपर के दो दांत, और इन नीचे वाले जो हैं वो हैं सनाया सुफला, यानी नीचे के दो दांत। इनको मैं कोशिश करती हूँ मार्क करने की। अच्छा, आप ये देखिए, गुड हो गया। ये दो दांत, ठीक है, जिनको हमने मार्क किया, एक जोड़ा ये बन गया, ये देखिए, एक जोड़ा ये बन गया, इसके साथ ये दांत। सेम नीचे वाली ही इस पॉइंट पे जब हम देखेंगे ना, तो गुरी दो दांत जो हैं ये मौजूद हैं, एक जोड़ा ये बन गया। फिर उसके बाद आती है रुबाई। रुबाई चार, रुबाई का मतलब ये चार होता है। रेड कलर में ये जो आपको मेंशन किया गया है, इसका मतलब है अरुबाइयात, यानी कि दो रैबिट टीथ जो हमारे हैं ना, उसके एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, नीचे के रेड, ये देखिए ये रेड और ये रेड, और इसी तरीके से नीचे वाली साइड का ग्रीन के साथ वाला एक लेफ्ट और एक राइट, यानी एक दायां और एक बायां। ये 4 दांत, इनका नाम है रुबाई। कितने दांत हो गए? सबसे पहले दो फ्रंट टीथ, उनका नाम हो गया सनाया उलिया, ऊपर के दो दांत दरमियान वाले, और सनाया सुफला, नीचे के दो दांत जो फ्रंट पे आते हैं। उसके बाद ऊपर का एक दांत जो सनाया उलिया के साथ है, दाएं भी और बाएं भी एक जोड़ा। इसी तरीके सनाया सुफला के साथ ऊपर भी और नीचे भी एक एक जोड़ा। जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं वो है अरुबाइयात, इनका नाम है रुबाई। ये 4 हैं, इसलिए इनको रुबाई कहा गया है। वैसे तो सनाया उलिया, ये जो सनाया है ये भी 4 हैं, लेकिन इनको उलिया और सुफला कह के दो दो का पेयर बना दिया। सनाया उलिया ऊपर के दो फ्रंट वाले, और सनाया सुफला नीचे के दो। रुबाइयात 4 हैं, दो ऊपर के दो नीचे के। इनकी बात ब्लैक कलर में जो मेंशन हो रहे हैं उनका नाम है अल अनियाब। अल अनियाब जो होते हैं, ये देखिए, ये भी दो ऊपर हैं रुबाई के साथ, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। ठीक है, इसी तरह दो नीचे हैं, एक रुबाई की लेफ्ट पे और एक रुबाई के राइट पे। दो, दो नीचे और दो ऊपर, ये भी मिकदार में 4 हैं। ठीक है, ये 4 दांत हैं। ये अनियाब जो है ना, ये थोड़े से कोना सा इनका निकला हुआ होता है, ये उस तरह के दांत हैं। ठीक है, उसके बाद दवाहिक, ब्लू कलर में 4 दांत, अनियाब के साथ ब्लू कलर में जो नजर आ रहे हैं, दो लेफ्ट पे और ऊपर और नीचे, और दो राइट पे ऊपर और नीचे।
सेम इसी तरह ये जोड़ा, यानी कि अन्याप के साथ एक दांत लेफ्ट पे नीचे, एक दांत लेफ्ट पे ऊपर, इसी तरह दो दांत लेफ्ट पे ऊपर नीचे, और इसी तरह दो दांत लेफ्ट राइट नीचे, दोनों साइड पे एक एक होगा। दो ऊपर हो गए, दो नीचे हो गए, चार दांत ये हो गए। कितने हो गए हमारे दांत? चार ये वाले हो गए, चार ये वाले हो गए, चार ये वाले हो गए, और अदवाहिक चार ये वाले हो गए। कहने को तो ये दांत ही कहलाते हैं, थोड़ी सी मोटे होते हैं, यानी 12 दांत हो गए अब हमारे। अब जनाब यहां तक हमारे दांत मुकम्मल हो गए। दवाहिक जो है ना, ये इसलिए इनका नाम दवाहिक है कि दहक, द्वात, हा, काफ, ये हंसने को भी कहते हैं, मुस्कुराने को भी कहते हैं। ये वो दांत हैं जो मुस्कुराते हुए नजर भी आते हैं। तो इसलिए इनको जो ब्लू कलर से मेंशन किया गया है ना, ऊपर भी एक पेयर है ब्लू और नीचे भी एक पेयर है ब्लू, इनका नाम है दवाहिक। इसके बाद तवाहिन जो हैं वो 12 दाढ़े हैं। यहां से दाढ़ें शुरू हो गई, यानी ऊपर जितने भी हमने पढ़े दांत थे, अब हमारी ये दवाहिक भी जो है ना, ये थोड़ा मोटा दांत होता है। और क्योंकि ये आप देखेंगे तो बारीक सी दाढ़ ही इसको कहा जाए तकरीबन तो होगा, लेकिन इसका ये दांत शुमार दांतों में ही होता है। ठीक है, तो तवाहिन यानी कि ये 12 दाढ़ें हैं, जो तीन लेफ्ट पे ऊपर, तीन राइट पे ऊपर, इसी तरह तीन लेफ्ट पे नीचे, तीन राइट पे नीचे, 12 दाढ़ों का ये पेयर, इसका नाम है तवाहिन। और ये तवाहिन जो है ना, ये हमारे खाने के चबाने के काम आता है। बेसिक हमारी यही दाढ़ें हैं जो येलो कलर में मेंशन हुई हुई हैं, जो चीजों को चबाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये येलो कलर में मेंशन हुई हुई हैं, तीन ऊपर राइट, तीन ऊपर लेफ्ट, तीन नीचे राइट, तीन नीचे लेफ्ट, 12 दाढ़ें हो गई। अब ये देखिए अन्नवाजिज, ये नवाजिज जो है ना, ये अक्ल दाढ़ है, जिसको हमने ऑरेंज कलर में मेंशन किया है। हर एक की ये दाढ़ नहीं होती, किसी की एक होती है, किसी की दो होती हैं, किसी की चारों भी होती हैं, और किसी की कोई भी नहीं होती। बेमकसद होती हैं, यानी कि ये ना तो चबाने के काम आती हैं और ना ही ये दांतों में यूज होती हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह की कुदरत है, पाई जाती हैं, लिहाजा इनका नाम भी है। तो हमने देखा हमारे मुंह के अंदर टोटल कितने दांत हैं। असनाया, दो ऊपर और दो नीचे, चार दांत। सनाया उलिया, ऊपर के दो दांत। सनाया सुफला, नीचे के दो दांत। फ्रंट टीथ, सामने के बिल्कुल दो दांत। उसके लेफ्ट राइट दो दो दांत। अर्रुबायात, दो ऊपर और दो नीचे, चार दांत, ये हो गए आठ। अल अनियाब, ब्लैक कलर के जो नजर आ रहे हैं, दो ऊपर हैं और दो नीचे हैं, और रुबाई के साथ साथ बिल्कुल चार, ये हो गए 12। अवाहिक, ये दाढ़ों नुमा दांत होते हैं, थोड़े मोटे, जो हंसते हुए नजर भी आते हैं, तो ये भी चार हैं, जो ऊपर भी होंगे दो और नीचे भी होंगे दो, चार का पेयर। यहां तक तो चार चार दांत और दांतों का पेयर बन रहा है। ठीक है, जो दो ऊपर हैं और दो नीचे हैं। उसके बाद जो आती है ना अतवाहिन, ये तवाहिन जो है ना, ये चबाने वाली दाढ़ियां जो येलो कलर की हैं, ये छह नीचे और छह ऊपर का पेयर है, एक दूसरे के बिल मुकाबिल हैं ये ऊपर नीचे का पेयर 12 दाढ़ों का है, जो हमारी मेन दाढ़ें हैं, जिनसे हम कोई भी चीज को चबाते हैं। और अन्नवाजिद, जो बिल्कुल आखिर में होती हैं, बेमकसद होती हैं लेकिन पाई जाती हैं। यानी कि बेमकसद का मतलब ये है कि ये दांतों के मखारिज में इस्तेमाल नहीं होती, इनसे कोई मखरिज नहीं बनता, ना ही ये यूज होती हैं। तो ये भी चार हैं, दो ऊपर और दो नीचे, जिनको ऑरेंज कलर में मेंशन किया गया है। ये हो गए हमारे टोटल दांत। ये तमाम दांत जो होते हैं ना, ये इस्तेमाल होंगे कहाँ पर? इस्तेमाल होंगे, ये हमारे मखारिज में इस्तेमाल होंगे। कुछ हमारे मखारिज में इस्तेमाल होंगे, कुछ सिर्फ हम इल्म में इजाफे के लिए याद करेंगे। कोई भी चीज जाया तो नहीं होती। जब भी कोई इल्म हासिल किया जाता है जिंदगी के किसी ना किसी मकाम के ऊपर, वो हमारे लिए बेनिफिशिएंट होता है।
याद करना, किसी चीज का सीख लेना आपके लिए कभी भी जो है वो वेस्ट नहीं होता। तो सेम इसी तरीके से आप इन तमाम दांतों के नाम याद करेंगे। ठीक है, इन तमाम दांतों के नामों को, यहाँ तक दांत और फिर उसके आगे दाढ़ों को याद करेंगे, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। इसी तरीके से इससे पहले जो हमने पढ़ा है, हमने जुबान को देखा है। जुबान के भी प्रॉपर चार हिस्से हैं। तीन हिस्से तो वो हैं जो आम हैं, यानी कि हमने देखा अक्सुल लिसान, वसतुल लिसान और तरफुल लिसान। लेकिन इसके बाद जो चीज है वो है हाफतुल लिसान, जो कि प्रॉपर पहले हमें पता नहीं थी। यानी कि आम उसका नहीं है, लेकिन ये इस्तेमाल में आती है। इस्तेमाल में किस तरीके से आती है? ये मखरिज में यूज होती है। तो इस वजह से इसको हमने जहन में रखना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये इनको हमने यूज कहाँ पे करना है। अच्छा, इसको मैं अगली रिकॉर्डिंग में रखती हूँ।